प्राजना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, सॉरी। या कार्बोक्सिलेशन में व्हाट इज हैपनिंग, RuBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. It is accepting carbon dioxide in the presence of Rubisco enzyme, and a 6 carbon compound is forming which is very unstable. Unstable है तो it is dissociating into 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, and each phosphoglyceric acid is having 3 carbon. Okay, now एक molecule अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाया, so we are getting 2 molecules of 3 PGA. अगर let me assume suppose 3 carbon dioxide fix करवा दिया, so we are getting 6 molecules of 3 PGA. Okay, अब this is the first step. चुका है, कार्बोक्सिलेशन हो गया. Now next step is reduction. Okay, so reduction में what is happening, यहाँ पे जो 6 molecules बने हैं phosphoglyceric acid के, उससे start करेंगे. 6 molecules of 3 PGA जो बन गए हैं, they are getting converted into 6 molecules of 1,3-biphosphoglyceric. पहले 3 phosphoglyceric acid था, now it is converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid in the presence of enzyme phosphoglyceric acid kinase or phosphoglycerate kinase, and here ATP is being utilized. देखो जो ATP लाइट रिएक्शन में बना था, that ATP is being utilized here. So ATP वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ADP में, और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है हाई एनर्जी बॉन्ड से, ATP के हाई एनर्जी बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, it is being utilized in the formation of 1,3-bisphosphoglycerate. Actually what is happening, देखो 3-phosphoglycerate मतलब है इसके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, राइट. हम लोगों ने देखा कि पीजीए के पास 3 कार्बन है. 3 कार्बन में थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, 3 कार्बन में से थर्ड कार्बन पे फॉस्फो ग्रुप है, दैट इज व्हाई 3-phosphoglycerate. ओके, अब एटीपी एडीपी में चेंज हुआ तो वहां से एक फॉस्फेट निकलेगा, वो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा 3-phosphoglycerate में, बट कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे. That is why the name 1,3-bisphosphoglycerate, क्योंकि अब 1 फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. So 1,3-diphosphoglycerate. Because 6 molecules हम लोगों ने चेंज किए थे, तो 6 molecules चेंज होंगे 6 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate में. ये स्टेप क्लियर है सबको? 6 molecules of 3-phosphoglycerate ATP ADP में चेंज हुआ और वो फॉर्म हो गए 6 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate. Okay, now 6 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate जो बने हैं, they are further converted into 6 molecules of glyceraldehyde phosphate, G3P. इसको क्या बोलते हैं, G3P. 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. The enzyme here that is being used is G3P dehydrogenase. G3P dehydrogenase enzyme. Yes बच्चा, 6 molecules of PGA को हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं ना. अगर एक molecule of PGA कन्वर्ट करवाते तो एक ATP यूटिलाइज होता, बट 6 molecules of 3 PGA हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं तो 6 ATP यूटिलाइज होगा. ओके, नाउ यहाँ पर 6 molecule of 1,3-diphosphoglycerate हो गए, तो दे आर कन्वर्टिंग इनटू 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, that is G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. यहाँ किसका यूटिलाइज हो रहा है, NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना था, that NADPH is being utilized here and NADP is forming. So 6 molecules का conversion करवा रहे हैं, that is why 6 NADPH is being utilized. So this is reduction. Here carbon dioxide is actually reduced. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ने पहले फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्म लिया and then it is being reduced. So this is the step for reduction. I hope यहाँ तक clear है. Is it clear everyone? Good. Okay, 6 molecules of G3P अभी हमें मिल गए हैं.
अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब हमें कुछ चीज फिर से बनानी होगी. वी आर गोइंग टू फॉर्म समथिंग अगेन. तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, देखो फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 में 3 कार्बन थे, तो यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पे 3 कार्बन ही है. ग्लिसरल्डिहाइड है 3 कार्बन ओनली. ओके, सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन. अगर मैं 6 इंटू 3 करूं तो मुझे 6 में इन टोटल कितने कार्बन होंगे? 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 कार्बन. 18. यस विरोप, वेरी गुड. 18 कार्बन. 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मिले और हर मॉलिक्यूल ऑफ G3 में 3 कार्बन है. सो इन टोटल मेरे पास यहाँ पर 18 कार्बन हो गए. अब उन 18 कार्बन में से मुझे RuBP फिर से बनाना है, बिकॉज ये साइकिल चलेगी, RuBP फिर से यूटिलाइज होगा. सो RuBP को मुझे रीजनरेट करना है बार बार, सो दैट वो बार बार CO2 को एक्सेप्ट कर पाए. सो 18 कार्बन का यूज करके मैं कितने RuBP बना सकती हूँ? RuBP के हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 18 कार्बन का यूज करके 18 कार्बन में से कितने कार्बन यूज करूं so that I can make RuBP again? 3. Very good. 3. 15 कार्बन यूज कर लेंगे और 3 molecules of RuBP मिल जाएगा. That is what I have done here. 6 G3P में से 5 G3P मैंने यूज कर लिया. 5 into 3 15. 15 कार्बन से मुझे कितने RuBP मिल गए? RuBP मिल गए. राइट, RuBP यहाँ पे रीजनरेट हो गए, सो दैट ये फिर से यूटिलाइज हो पाए फर्दर. ओके, नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बच गया. इसके पास कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन. अब बट ग्लूकोज का फॉर्मूला वी नो, इट इज C6H12O6. सो ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन. बट G3P के पास 3 कार्बन है, तो ग्लूकोज बन पाएगा? अभी नहीं बन पाएगा. सो पूरे साइकिल को फिर से रिपीट करना होगा, सो दैट इन द एंड मुझे 2 G3P यहाँ मिले एंड अल्टीमेटली एक ग्लूकोज बन जाए. एवरीवन समझ में आया? सो फॉर गॉट इट. एक G3P यहाँ से बचा था, तो उससे तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही बन पाएगा, मतलब ग्लूकोज बन ही नहीं पा रहा है. तो पूरे प्रोसेस को into 2 कर दो, so that ultimately मुझे 2 G3P मिलते हैं and then a whole molecule of glucose will form. Now the question that will arise, कितने molecules of carbon dioxide are needed? How many molecules of carbon dioxide are needed to form 1 molecule of glucose? Answer me. स्नेहिल 36. विरोक फिर से सोचो, नॉट 3. जयेंद्र फिर से सोचो बच्चा. आहान नॉट 9, फिर से सोचो. 6 जिसने भी दिया आंसर करेक्ट. निशांत हाउ 36? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ? देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देन 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बने एंड अल्टीमेटली हाफ ग्लूकोज बना. 3 कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स करवाया तो हाफ ग्लूकोज बना, तो 3 का डबल कर दो 6. जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाओगे देन होल ग्लूकोज विल फॉर्म. गॉट इट? 6. yes, 6 atoms, 6 carbon atoms are required. You can say 6 carbon dioxide molecules are required in order to produce 1 molecule of glucose. Yes. Okay, तो total 6 molecules of carbon dioxide चाहिए होंगे और you can say 6 carbon atom चाहिए through carbon dioxide. इतना क्लियर है बच्चा? ओके, देखो इसका एक पूरा जो एक्चुअल साइकिल है, ये मेरा वे था आप लोगों को समझाने का. एक्चुअल साइकिल देखते हैं.
विरोक जरूरी नहीं है जितना कार्बन यूज कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन भी यूज होगा। CO2 में ऑक्सीजन डबल होता है, आई नो, बट वो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है ग्लूकोज में भी डबल होगा। जितना चाहिए एक कंपाउंड बनाने के लिए उतना ही यूटिलाइज होगा, एंड अदर थिंग्स जो जितना बच गया है दैट विल यूटिलाइज इन अदर थिंग्स। बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बच्चा जितना भी RUBP एक्स्ट्रा भी बन रहा है ना, दे आर ऑलवेज गेटिंग यूटिलाइज इन द इन रनिंग द साइकिल अगेन एंड अगेन। ओके स्नेहा? यस, ये दिस इज द एक्चुअल साइकिल, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। हियर 6 molecules of carbon dioxide are fixing, 6 molecules of RUBP यहाँ पे लिया, and 6 molecule of carbon dioxide is fixing, and we are getting 12 molecules of 3-phosphoglycerate। वहां पर मैंने क्या किया था बच्चा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो 6 फॉस्फोग्लिसरेट मिले थे डबल। अगर यहाँ पर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करा रही हूँ तो आई एम गेटिंग 12 molecules of 3-phosphoglyceric acid। Getting it? Okay, then 12 molecules से 12 ATP ADP में कन्वर्ट हुआ क्योंकि 12 PGA लिए हमने, so 12 molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid बनेगा। Then again NADH और NADPH NADP में कन्वर्ट होगा। This is NADPH, okay? It will get converted into NADP, and 12 molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid will convert it into 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate। ये हो गया स्टेप रिडक्शन। अब यहाँ पे जो 12 G3P बने हैं उसमें से 2 molecules of G3P हमने निकाल लिया। एक G3P के पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड बचा? 3 कार्बन, राइट? 2 molecules of G3P के पास कितने हो गए? 6 कार्बन। 6 कार्बन से हमें 1 molecule of glucose मिल गया। बाकी के जो 10 बचे, 10 into 3 plus 30 कार्बन, 30 कार्बन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 कार्बन होता है एक RUBP में। कितने molecules of RUBP हमें फिर से मिल जाएंगे? 6 RUBP। क्लियर सबको? एवरीबॉडी फिर से समझो इसे। 6 molecules of RUBP getting fixed with 6 molecules of carbon dioxide in the presence of Rubisco enzyme, and we are getting 12 molecules of 3-phosphoglyceric acid. Okay, 3-phosphoglyceric acid further getting converted into 1,3-diphosphoglyceric acid and then glyceraldehyde 3-phosphate reduction process. So 12 molecules of G3P में से 2 molecules utilize हो गए। बच्चा ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में और NADPH into NADP to release energy, और वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है नए बॉन्ड फॉर्मेशन में, नए मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं उनके बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके अनवी? ATP और NADPH both are assimilatory parts, both are high energy molecules, so उनका एनर्जी यूटिलाइज होगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये सब बना रहे हैं उनको यूटिलाइज, उनके बीच में बॉन्ड बनाने में। Previous slide, sure. Just wait. There it is. निशांत, लास्ट पार्ट कौन सा? एज इन G3P रीजनरेशन पार्ट यू आर टॉकिंग। बच्चा देखो, रिडक्शन प्रोसेस तक हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मिल गए, ठीक है? एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P हैज 1 molecule of G3P has 3 कार्बन। 6 molecule of G3P के पास कितने हो जाएंगे? 18 कार्बन। ओके, नाउ 18 कार्बन में से हमें
क्या बनाना है? 18 कार्बन में से हमें RUBP बनाना है। RUBP के एक मॉलिक्यूल में बच्चा 5 कार्बन होते हैं। सो 18 कार्बन के मैं कितने कार्बन यूज करूं कि मुझे RUBP मैक्सिमम मिल जाए? 15 कार्बन आई कैन यूटिलाइज, राइट? 5 5 5 15, तो 3 molecules of RUBP बन जाएंगे। 3 molecules of RUBP are being formed here. तो 3 molecule 15 से बन गए। 3 कार्बन बचा, 3 कार्बन बचा मतलब एक G3P बच गया। तो एक G3P है 3 कार्बन, बट ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए। तो 6 कार्बन लाने के लिए हमें पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, सो दैट इन द एंड मुझे 2 molecules of G3P मिले। जैसे 2 molecules of G3P मिलेंगे, the whole molecule of glucose can be formed. Nishant, clear? Actually, the Kelvin cycle is running 6 times. The whole cycle is running 6 times because 6 carbon dioxide fix हो रहे हैं। जब 6 carbon dioxide fix होंगे, then we will be getting 1 molecule of glucose. रिडक्शन का लास्ट पार्ट, और रिडक्शन में क्या हो रहा है बच्चा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 फॉस्फोग्लिसरेट मिल गए। अब 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए को हमने कन्वर्ट करवा दिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिंपल, एटीपी से एडीपी बना, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना, तो एक फॉस्फेट जो निकला वो मैंने फॉस्फोग्लिसरेट में ऐड करवा दिया। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था पहले, अब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। नाउ 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट अगेन कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो एंजाइम हो गई G3P डिहाइड्रोजिनेज जो कन्वर्ट करवाएगी, और NADPH कन्वर्ट होगा NADP में, तो जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी विल यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बेस फॉस्फेट से 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बन रहा है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके करण? This was about केल्विन साइकिल। बच्चा C4 और कैम पे आई एम कमिंग, अभी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, अभी क्लियर हो जाएगा। C4 एंड कैम डिफरेंट है, बट दोनों के अंदर केल्विन साइकिल होती है। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट जयंत। ओके, सो दिस वाज अबाउट C3 cycle. Now C4 cycle. C3 cycle normally सब plants में होता है। Normally every plants form glucose because of C3 cycle or by using C3 cycle. Okay. Okay, Naman, I got it. हाँ, so C4 cycle. Now C3 cycle से एक different phenomena होता है जो nature में it is happening. It is known as C4 cycle. और जिन plants में ये cycle होती है, these plants are known as C4 plants. Okay. C3 cycle में first product था, it was first stable product was phosphoglyceric acid. विरोक मॉड्यूल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इट इज अवेलेबल ऑन पेनेशिया। पेनेशिया ऐप डाउनलोड करो, अपने कोऑर्डिनेशन से अपने यस बच्चा अपलोडेड है, पीडीएफ फॉर्म अपलोडेड है विरोक पेनेशिया पे। प्लीज आस्क योर सेंटर कोऑर्डिनेटर अबाउट इट। देखो C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वाज 3PGA, इट हैज 3 कार्बन, दैट इज व्हाई इसका नाम C3 साइकिल था। नाउ C4 साइकिल में जो कंपाउंड बनेगा फर्स्ट वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल and it was given by Hatch and Slack, that is why the name is Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway भी बोलते हैं इसे। ओके, अब C4 साइकिल है क्या? एक्चुअली क्या होता है ना बच्चा, कुछ ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है,
वहां पर CO2 का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में वेयर हाई टेम्परेचर अकर, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम हो गया है एंड ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है, तो रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ना करवा के इट कीप ऑन फिक्सिंग ऑक्सीजन। देखो रुबिस्को को फुल फॉर्म अभी बताया था, रुबिस्को इज राइबोलोस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करवा सकता है और ऑक्सीजन भी। ओके, अब अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं करवाएगा, वो अपना ऑक्सीजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं हो पाएगा। और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं ना, बट हेयर रेस्पिरेशन इज हैपनिंग इन द लाइट, दैट इज व्हाई फोटो रेस्पिरेशन एक फिनोमिना बोल दिया है जो प्लांट्स में होता है। ओके, बट फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस क्योंकि इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो प्लांट्स ने टू मिनिमाइज दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन किया सो दैट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस। इतना पार्ट समझ में आया? गेटिंग इट बच्चा? Alternate mode of carbon dioxide fixation as C4 cycle to minimize photorespiration and to optimize Calvin cycle so that easily without any hindrance photosynthesis can occur and glucose can be formed. Okay, now कुछ C4 plants के example आपको सामने दिए हैं, pineapple, sugarcane, maize, sorghum, rice। बच्चा फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, 4 कार्बन मॉलिक्यूल इट इज। ओके हर्षित, या सो C4 प्लांट्स के कुछ एग्जांपल, पाइनएप्पल, मेज, sorghum, a triplex is a scientific name for a particular kind of plant. Okay, so these are some example for C4 plants. Now C4 plants में as I told you उन्होंने कुछ adapt किया अपने अंदर, एक डिफरेंट अडेप्टेशन अडेप्ट किया है सो दैट वो इजीली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए इवन इन द लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तन्मय आई विल टेक द डाउट्स लेटर ऑन, पहले पूरा समझ लो। ओके, नाउ C4 प्लांट हैज डिफरेंट एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोगों ने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे two types of photosynthetic cells are forming. Two types of photosynthetic cells are present, bundle sheath cell and mesophyll cell. And these type of anatomy, this type of anatomy is known as Kranz anatomy. It is known as Kranz anatomy. So difference क्या है? Let me show you with this diagram. देखो, ये डायग्राम देखो, यू रिमेम्बर पहले एक इमेज देखते हैं जहां पर हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा था, लीफ डायग्राम वी हैव डन इट, मेसोफिल टिश्यू बताया था, दिस वन, रिमेम्बर दिस। सो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, बीच में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। दिस इज नॉर्मल, C3 साइकिल वाले प्लांट्स में ये होता है। But how it is different from C4? C4 का internal structure दोनों में difference है। See how it is different. C3 plants में vascular bundle है बीच में, C4 plants में भी vascular bundle है। C3 plants में it is covered with bundle sheath cell, C4 plants में भी it is covered with bundle sheath cell. But C3 plants में जो mesophyll tissue है it is divided into palisade layer and spongy layer. Unlike C4 plants जहां पर bundle sheaths के around several layers of
मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है. सो C4 प्लांट में मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऐसा कुछ नहीं बना रहा है. इट इज अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स अराउंड द बंडल शीट सेल्स ऑफ द प्लांट. गेटिंग इट बच्चा? डिफरेंस समझ में आया? C3 और C4 प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में एवरीवन प्लीज टेल मी. C3 प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल है, देन बंडल शीट सेल है, एंड देन मीजोफिल टिश्यू है, पैलिसेड और स्पॉन्जी में अरेंज्ड है. नित्या प्लीज अंडरस्टैंड बच्चा. देखो C3 प्लांट्स में क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, देन उसके अराउंड, वेस्कुलर बंडल के अराउंड क्या प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल का लेयर प्रेजेंट है. दिस इज बंडल शीट सेल and then palisade parenchyma and spongy parenchyma present है. But C4 plants what is happening? C4 plants में क्या हो रहा है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ लेयर तो प्रेजेंट है, बट फिर मेसोफिल लेयर्स प्रेजेंट है बहुत सारी लेयर्स में. ओके अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये 4 पॉइंट्स पढ़ो. I have written here. Inner ring of bundle sheath cells around the vascular bundle and an outer layer of mesophyll cell. So bundle sheath cell vascular bundle के ऊपर present है, vascular bundle है, then bundle sheath layer है, and then mesophyll cells की layer है. Okay, then mesophyll cells और bundle sheath cell दोनों cells हैं, these are connected with opening known as plasmodesmata. Plasmodesmata क्या करेगा बच्चा, plasmodesmata will help in the intercellular movement, cells के बीच में movement में help करेगा. Okay, now अंदर वाला जो सेल है, बंडल शीथ लेयर जो इनर साइड पे है, उसमें रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है. रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में, इनर लेयर्स में. बट आउटर साइड पे जो एक्सपोज्ड सेल हैं, जो आउटर लेयर्स हैं, उन आउटर लेयर्स में क्या प्रेजेंट है, ये वाली एंजाइम कार्बोक्सिलेज. व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट, पेप कार्बोक्सिलेज. ओके, पेप कार्बोक्सिलेज आउटर लेयर में प्रेजेंट है. अब देखो क्या होता है, इन्होंने प्लांट्स ने एक्चुअली क्या करा है, रुबिस्को को छुपा दिया, क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर सकती थी, तो उन्होंने रुबिस्को को क्या किया, अंदर की तरफ पुश कर दिया, अंदर बंडल शीथ सेल्स में छुपा दिया. जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस, रुबिस्को को दे हैव हिडन इट, कहां पे हाइड किया उसको, बंडल शीथ सेल में. ओके, और आउटर लेयर जो मेसोफिल सेल्स के हैं, वो एक्सपोज्ड सेल है, वहां पर उन्होंने एक अलग से एंजाइम रख दी नोन एज पेप कार्बोक्सिलेज. अब इस एंजाइम के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इट हैज ओनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाएगा ये, इससे ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है. सो इवन इफ इन द एनवायरनमेंट इफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मोर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो, इट विल ओनली फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे लो कंसंट्रेशन हो या हाई. अगर ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो कंसंट्रेशन है, स्टिल पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम विल फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. गेटिंग इट? क्रान्स एनाटॉमी समझ में आया? नाउ C4 साइकिल देखते हैं, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर. देखो C4 साइकिल में बढ़ने से पहले रुबिस्को एंजाइम है. रुबिस्को एंजाइम अगर लो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाई रहेगा. तो केल्विन इसको अपना कार्बोक्सिलेशन वाला एक्टिविटी आराम से करेगा. बट ऑक्सीजन अगर हाई हो गया, that is usually in the range of high temperature, the area of high temperature,
तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन रूबिस को स्टार्ट कर देता है, ऑक्सीजन फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो उसे मिनिमाइज करने के लिए C4 साइकिल रन होती है, विच इज दिस। अब देखो C4 साइक्लिंग में व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन मैंने जो बनाया है, एक्चुअली डॉटेड लाइन के अपर रीजन पे मेसोफिल सेल है और लोअर रीजन पे बंडल शीथ सेल है, ठीक है। डॉटेड लाइन इज एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मतलब ओपनिंग है सेल्स के बीच में, सो दैट मूवमेंट हो सके दो सेल्स के बीच में, ओके, फॉर इंटरसेल्यूलर मूवमेंट। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है वो डॉटेड लाइन। नाउ बाहर की साइड पे मेसोफिल सेल है, इनर साइड पे बंडल शीथ सेल है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल है और फर्स्ट कंपाउंड है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो पेप प्रेजेंट है कहाँ पर, मेसोफिल सेल में। वो पेप क्या करेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अभी पढ़ा था हमने पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में, आउटर सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, ओके। सो अगर इसे मैं C3 साइकिल से कंपेयर करूं तो बच्चा C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन था, सबसे पहले CO2 को कौन कैच कर रहा था, RUBP। वहां पर RUBP था, करेक्ट जयंत, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि, आणवी, खुशी, वेरी गुड, RUBP, ओके। RUBP था C3 साइकिल में। यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म प्लीज नोट डाउन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स। और इसने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैच किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज। वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से ज्वाइन करते हो, वेट, आई विल रीजॉइन, जस्ट वेट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, मेसोफिल सेल में बच्चा प्रेजेंट है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन है, और एक कार्बन कहां से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया। सो अभी कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। सो अगला क्या बनेगा, नेक्स्ट दैट इज फॉर्म इज ऑक्सैलो एसिड व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। Okay, so we have started with PEP, that is phosphoenol pyruvate. This is the primary acceptor of CO2 in the case of C4 plant. सबसे पहले CO2 को यही कैच कर रहा है, तो primary acceptor of CO2 in the case of C4 plant is PEP. Okay, now PEP is catching this CO2 and it is forming a 4 carbon compound known as oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid, OAA. It has 4 carbon. That is why this is the first product.
first stable product of C4 cycle, that is why the name C4 cycle. ओके 4 कार्बन हो गए इसके पास, पेप के पास 3 कार्बन थे, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया, so 4 carbon compound known as oxaloacetic acid. Now this oxaloacetic acid, it is being converted into malate. Malate is also known as malic acid. दोनों सेम चीज है. Malate is also known as malic acid. So oxaloacetic acid is being converted into malic acid in the presence of which enzyme? Malic acid or malate dehydrogenase enzyme. Okay, and NADPH here is being converted into NADP. Now this malic acid जो मेसोफिल सेल में बन गया है वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा कहां पर? बंडल शीथ सेल में. डिफ्यूज इनसाइड बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन. ओपनिंग प्रेजेंट है, चैनल्स प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा, उसके थ्रू वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा वेयर? बंडल शीथ सेल में, जो इनर साइड लेयर प्रेजेंट थी बंडल शीथ सेल की. नाउ बंडल शीथ सेल में जैसे ये पहुंचेगा, इट विल डिसोशिएट, इट विल अगेन डिसोशिएट इनटू टू थिंग्स. कौन कौन से? पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Oxaloacetic acid has 4 carbon. Malic acid has also had 4 carbon. इस 4 कार्बन में से बच्चा जब डिसोशिएट होता है तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. जो बचे 3 कार्बन, दैट फॉर्म्स अनदर कंपाउंड नोन एज पायरुवेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड अभी बंडल शीथ सेल में मिल गया, एंड बंडल शीथ सेल में ऑलरेडी कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है? रुबिस्को. बंडल शीथ में ऑलरेडी रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट, सो उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. अब इट विल स्टार्ट केल्विन साइकिल नॉर्मली जस्ट लाइक C3 प्लांट एंड ग्लूकोज विल फॉर्म. जस्ट लाइक C3 प्लांट्स यहाँ पे भी वही होगा और ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा. पायरुवेट इज पायरुविक एसिड. यस, पायरुवेट इज पायरुविक एसिड. यू कैन से either is correct, both of them is correct. Okay, so pyruvic acid जो बना अब, that will again move to the mesophyll cell, and there in the presence of pyruvic acid dikinase enzyme, it will converted into PEP. So यहाँ पर PEP का रीजनरेशन हो रहा है. वहां पर बच्चा RUBP रीजनरेट हो रहा था so that साइकिल में बार बार यूज हो पाए. यहाँ पर PEP is being regenerated so that बार बार it will be able to utilize in the cycle in the formation of glucose. तो समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग? C4 पाथवे में बस कुछ एडिशनल चीजें हो रही हैं, अदरवाइज C3 इज आल्सो हैपनिंग हियर. बट बिकॉज ऐसे प्लांट्स के आसपास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऐसे एंजाइम से पहले फिक्स करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करे, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो. श्योर आन्वी, देखो मैलेट और मैलिक एसिड यहाँ बन गया. अब ये मैलिक एसिड ना डिफ्यूज हो जाएगा, मूव करेगा कहाँ? बंडल शीथ सेल में. जैसे ये बंडल शीथ सेल में पहुंचा, इट विल डिसोशिएट इनटू टू थिंग्स, टू मॉलिक्यूल्स. वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, द अदर इज पायरुविक एसिड. अब कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में मिल गया, बंडल शीथ सेल में ऑलरेडी रुबिस्को प्रेजेंट है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. इट विल रन द केल्विन साइकिल एंड ग्लूकोज विल फॉर्म नॉर्मली जस्ट लाइक C3 प्लांट. और जो पायरुविक एसिड बच गया था वो वापस मेसोफिल में सेल में जाएगा, एंड अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू पेप so that again it can be utilized to catch CO2. Last enzyme is pyruvic dikinase. काइनेज एंजाइम वहां यूज होगी बच्चा जहां जहां ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा होगा. यहाँ डाइकाइनेज एंजाइम है, अगर मैं C3 की बात करूं तो वहां पे भी यही होगा. यहाँ जहाँ पे ATP ADP में कन्वर्ट हुआ है वहां काइनेज एंजाइम यूज हुआ है. NADP अगर यूज होता है तो जनरली डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है. यहाँ NADP यूटिलाइज हो रहा है, सो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम.
Yes, C4 plant uses more energy to produce glucose, but C4 plants are more effective in photosynthesis. They are more effective in photosynthesis. अगर C3 प्लांट्स के आसपास क्या है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो फोटो रेस्पिरेशन कर देंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. बट C4 प्लांट्स के आसपास चाहे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, इट विल रन C4 cycle and fix carbon dioxide only. So C4 plants are more effective than C3 plants. Okay, Arpita? C3, C4 clear? Bacha, C3, C4. Now let's move on to CAM. CAM is known as cressolation acid metabolism. वरुण, बिकॉज टेक्स्ट बुक में आपको ये सब चीजें बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, बट एनटीएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे डिटेल में समझाना है. वहां पर सिर्फ वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं. आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल गया होगा. आई हैव ऑलरेडी सेंड द पीडीएफ. अगर जिसको नहीं मिला है प्लीज आस्क योर सेंटर कोऑर्डिनेटर. आई हैव ऑलरेडी सेंट इट. C4 साइकिल को भी आपको 6 टाइम रन करना पड़ेगा. C4 साइकिल भी 6 टाइम रन होगी, सो दैट यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, तभी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा. सेम एज C3 साइकिल. Virok, PDF of the chapter, not PDF of my this presentation PPT, so that you can have all the notes. PDF of chapter is already available on Panacea website or Panacea app. And we mostly in tropical region, जहाँ पर high temperature होता है. तन में वो सब चीजें आपको ना ऑलरेडी मॉड्यूल में मिल जाएंगी. जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो सिर्फ मैंने दी है, वही मैंने आपको भेजा है. ऑलरेडी मॉड्यूल में जो है दैट आई हैव नॉट सेंड. अदरवाइज जितना भी डिटेल पार्ट था आई हैव सेंट इट. ओके, let's move on to the next slide, that is about CAM, cressolation acid metabolism, CAM. now CAM, cressolation acid metabolism क्यों बोला है? because first सबसे पहले ये जो डिस्कवर हुआ था, it was in a plant family known as Crassulaceae. Crassulaceae एक फैमिली थी, उसमें सबसे पहले प्लांट की फैमिली है जिसके मेंबर्स हैं Crassula plant, Inoium plant. Okay, these are the plants, Crassulaceae family. तो इसमें सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, that is why the name cressolation acid metabolism. आप इसको जनरली remember, you just remember it in a way कि ये desert plant में होता है, like cactus, Apansia, okay, orchids, इन सब में होता है ये. So अब डेजर्ट प्लांट में वी जनरली नो भाई डे टाइम पे उनके अंदर ट्रांसपिरेशन लॉस प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि अगर डे टाइम पे हीट बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा है और डेजर्ट प्लांट में वाटर जो होता है, वाटर लेवल वो बहुत कम होता है, सो अगर ट्रांसपिरेशन रेट मैक्सिमम होगा डे टाइम पे भी, तो दे विल बी डेड, दे विल बी अ शॉर्टेज ऑफ वाटर विद इन द प्लांट्स. तो ट्रांसपिरेशन लॉस डे टाइम पे रोकना होता है. सो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम अपने स्टोमाटा क्लोज रखते हैं. अब अगर ड्यूरिंग डे टाइम वो स्टोमाटा क्लोज रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है स्टोमाटा से, राइट. तो वो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम वो स्टोमाटा क्लोज करते हैं, बट वो स्टोमाटा ओपन करते हैं रात के टाइम पे ओपन करते हैं. So what is happening here? During dark time, stomata क्या है, open है, stomata open है, और just like C4 वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, just like C4. stomata open है during dark, उन्होंने CO2 लिया, CO2 H का पेप ने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म हुआ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड फॉर्म हुआ, बट वो मैलिक एसिड पे रुक गए. मैलिक एसिड जैसे ही फॉर्म हुआ उसको वैक्यूल में सेंड किया और वैक्यूल में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया.
नाइट व्हाट इज हैपनिंग विद इन कैम प्लांट्स और यू कैन से डेजर्ट प्लांट्स में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट स्टोमाटा आर ओपन. सो स्टोमाटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, पेप उससे फिक्स करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, जस्ट लाइक C4, जस्ट लाइक C4. और वो मैलिक एसिड जो बना वो उन्होंने स्टोर कर लिया अपने प्लांट सेल्स के अंदर, जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें स्टोर करके रख लिया. रात में दे आर डूइंग दिस मच ऑफ वर्क ओनली. अब जैसे ही दिन होना शुरू हुआ ड्यूरिंग डे टाइम, लाइट के टाइम पे उन्होंने क्या किया, स्टोमाटा बंद कर दिया, सो दैट ट्रांसपिरेशन लॉस नाउ. स्टोमाटा क्लोज किया. अब मैलिक एसिड जो पूरी रात उन्होंने बनाया है वो स्टोर करके जो रखा है उन्होंने ग्लूकोज में, दे विल टेक आउट दैट मैलिक एसिड. कहां से, वैक्यूल से निकालेंगे, एंड इट विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड देयर द मैलिक एसिड अगेन डिसोशिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड अब मिल गया प्लांट को और उसने C3 साइकिल रन कर दिया, एंड पायरुवेट एसिड अगेन कन्वर्ट हो गया पेप में, सो दैट वो रात में फिर से यूटिलाइज हो पाए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाने में. गॉट इट? जस्ट लाइक C4 एवरीथिंग इज सेम हियर. जैसे C4 में हो रहा है, बस डे और नाइट का डिफरेंस आ गया. यस स्नेहा, डे और नाइट का डिफरेंस है. डे टाइम, नाइट टाइम में वो मैलिक एसिड बना रहे हैं और डे टाइम में वो मैलिक एसिड को डिसोशिएट कर रहे हैं. जस्ट दिस. ओके, सो देखो C3 साइकिल इज अ पार्ट ऑफ C4 एज वेल एज कैम. कैम में भी C3 साइकिल होगा एंड C4 प्लांट में भी कैम वो C3 साइकिल होगा. ओके, सो अल्टीमेटली C3 साइकिल तो हो ही रहा है, बस बिकॉज ऑफ सम हिंड्रेंस उन्होंने अपना कुछ फिनोमिना और यू कैन से अपना कुछ मेथड ऐसा डेवलप कर लिया है सो दैट उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. आणवी नाइट में इसीलिए वो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि नाइट में वो अपना पूरा एनर्जी मैलिक एसिड, जितना ज्यादा मैलिक एसिड स्टोर कर सकते हैं उसमें लगा रहे हैं और बाकी एनर्जी वो नहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं. अगर वो मैलिक एसिड से पूरा खाना बनाते रहेंगे तो डे टाइम पे उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए. अगेन देखो, डार्क के टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमाटा ओपन करते हैं क्योंकि दिन में कर नहीं सकते, तो रात के टाइम पे स्टोमाटा ओपन किया. जैसे स्टोमाटा ओपन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा सेल में और सेल में प्रेजेंट है पेप. पेप कैच करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को. इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड इन C4 प्लांट. जो मैलिक एसिड अब यहाँ बना है, it will get stored into the vacuole of the plant cell. अब डे टाइम पे क्या किया, स्टोमाटा क्लोज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है, बट जो मैलिक एसिड पूरी रात उन्होंने बना के स्टोर करके रखा है वो मैलिक एसिड वापस साइटोप्लाज्म में जाएगा एंड विल डिसोशिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन विल रन द C3 साइकिल एंड ग्लूकोज विल फॉर्म एंड पायरुवेट एसिड जो बना है वो वापस पेप में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट नाइट के टाइम वो फिर से यूटिलाइज हो पाए. ओके, गॉट इट? एवरीवन क्लियर है? कैम, C3, C4. हाँ, कैम में भी दो डिफरेंट साइकिल हैं, C3 में भी दो डिफरेंट, सॉरी C4 में भी दो डिफरेंट साइकिल है अर्पिता. C4 में C4 वाला पाथवे तो रन हो ही रहा है एंड C3 इज आल्सो रनिंग. कैम में भी C4 तो रन हो ही रहा है एंड C3 आल्सो रनिंग. सो Calvin's cycle is running everywhere because it is the main cycle through which glucose is produced. Okay, so this was about C3, C4 and CAM. यस तन्मय, कैम डे में भी हो रहा है और रात में भी हो रहा है बट डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं दोनों टाइम पे, बट इट इज पार्ट ऑफ कैम ओनली.
tulsi is also a CAM plant. Jayant, I'm not sure. I don't think so. But I will have to see once. I'm not very sure about it, but I don't think so कि tulsi CAM plant है. I will check and I will tell you, okay? But 80% तो नहीं होना चाहिए. But I am not 100% sure. I will see, okay? Yes, actual glucose is being produced in during the daytime through C3 cycle. क्योंकि C3 cycle तो daytime पे ही run हो रहा है, even in CAM. So this was about C3, C4 and CAM. Now, इसी के साथ photosynthesis part is covered. Light reaction, dark reaction, everything is covered. Yes, Ahan, even मुझे भी यही लगता है. Tulsi is not a CAM plant. But I said it because I was not sure, 100% sure नहीं थी. But Tulsi is not a CAM plant. Yes, it has to be. Okay. Now let us move on with factor affecting photosynthesis. Those factors that affect photosynthesis. So there are external factor and there are internal factor. External factor में the very first one is light. हम लोगों ने already बच्चा पढ़ा है light की quality और light की quantity. मतलब लाइट का इंटेंसिटी दोनों ही इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. ओके, लाइट का क्वालिटी कैसे? वी हैव ऑलरेडी सीन रेड लाइट और ब्लू लाइट में वो ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है एंड ग्रीन लाइट में लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? तो लाइट कौन से क्वालिटी का है उस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लाइट इंटेंसिटी. लाइट इंटेंसिटी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. अगर बहुत ज्यादा लाइट आप दे दोगे प्लांट को, जितना उसे रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा लाइट आप दे दोगे, ओके, तो क्या होगा बच्चा? क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है. पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे एंड उनका स्ट्रक्चर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो लाइट इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो फोटोसिंथेटिक apparatus और यू कैन से पिगमेंट्स, दे विल डिस्ट्रॉय, दे गेट डिस्ट्रॉयड और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सो लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी दोनों ही फैक्टर हैं. नॉट डिपेंडिंग ऑन द लाइट रिक्वायरमेंट. Plants are divided into two types. ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं. That's why I have written it here. Depending on the requirement of light intensity, the plants can be divided into two types: heliophyte and skyophyte. High intensity of light चाहिए होगा plant को, so it is considered as heliophyte. Helio means light. Heliophyte. एंड स्कायोफाइट अगर लो लाइट इंटेंसिटी प्लांट होगा, अगर लो लाइट इंटेंसिटी में भी वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर रहा है, तो दैट प्लांट इज कंसीडर्ड एज स्कायोफाइट. ओके, सो हेलियोफाइट एंड स्कायोफाइट. नाउ द फर्स्ट फैक्टर वाज लाइट, द अदर फैक्टर इज टेम्परेचर. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कैन अकर. No, indoor plants you cannot say they are skyophyte. They can be heliophytes as well. But अगर shade region में वो अच्छे से photosynthesis कर रहे हैं, they are growing well, then maybe it is a skyophyte. So temperature में बच्चा optimum temperature मतलब वो temperature range जिसमें maximum photosynthesis होता है. So just remember it. It is near around 35 degrees Celsius. 35 degrees Celsius. Please remember it. It is the optimum temperature where maximum photosynthesis can occur. Although it lies between 20 to 35 degrees Celsius, but 35 degrees Celsius is the optimum range, optimum point of temperature. ठीक है? इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक तब भी हो जाता है फोटोसिंथेसिस, बट अगर 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो
मोस्टली क्या होता है, एंजाइम जो होती है जो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होती हैं, दैट एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड. डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, आई हैव रिटन इट. डीनेचुरेशन मतलब डिस्ट्रक्शन. तो वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. तो टेम्परेचर इज आल्सो डिटरमाइनिंग फैक्टर. ओके. और CO2 और O2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. CO2 और O2 कैसे C4 प्लांट्स में अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो CO2 और O2 भी डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. ओके. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. वाटर अगर नहीं होगा तो डेफिशिएंसी जो क्रिएट होती है फोटो सिस्टम 2 में वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी. So water is also required in order to produce glucose, in order to do photosynthesis. Okay. Also अगर water less है already plant में, तो वो क्या करेगा, अपने water loss को बचाने के लिए स्टोमाटा क्लोज कर देगा. अगर स्टोमाटा क्लोज हो गए तो CO2 एंटर नहीं हो पाएगा एंड फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. So water is also a requirement, or it is also a determining factor for the rate of photosynthesis. Now internal factor chlorophyll. Of course chlorophyll pigment पे depend करेगा. What denature in high temperature? Enzymes बच्चा, enzyme. डार्क रिएक्शंस में अभी हमने पढ़ा C3 C4 साइकिल में कितनी सारी एंजाइम यूज हो रही हैं, वो एंजाइम डीनेचर हो जाती हैं, वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हाई टेम्परेचर में. ओके शर्मा. नाउ इंटरनल फैक्टर क्लोरोफिल पिगमेंट. बच्चा क्लोरोफिल पिगमेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी, तो उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. सो इट इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑफ कोर्स देखो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज. ठीक है. अब इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर आपने ऑलरेडी खाना बहुत खा लिया है तो आप वापस और खाना थोड़ी खाते हो, राइट. तो अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गया है प्लांट में, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कम कर देगा, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास ग्लूकोज बहुत है. सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा. सो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे भी डिपेंड कर रहा है, कितना ग्लूकोज बन रहा है उस पे भी डिपेंड कर रहा है. ओके. नाउ लीफ. ऑफ कोर्स लीफ पे भी डिपेंड करेगा, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर यंग लीफ होंगी, दे आर स्मॉलर इन साइज, तो स्टोमाटा कम होंगे, तो कम फोटोसिंथेसिस होगा. अगर मैच्योर लीफ है तो उनका साइज बड़ा होगा, ज्यादा स्टोमाटा होंगे, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा क्योंकि ज्यादा CO2 एंटर करेगा. ओके. So it will depend on chlorophyll, product of photosynthesis, as well as the structure of leaf. Optimum range बच्चे यहाँ लिखा है 0.03% to 1%. तन्मय कैम एट नाइट सेम है बच्चा. C4 अगर आपको समझ में आए तो कैम भी समझ में आ जाना चाहिए. डे नाइट में क्या हुआ, मैलिक एसिड बना और वैक्यूल में स्टोर हो गया. अब डे टाइम क्या होगा, तन्मय डार्क में क्या हो रहा है, स्टोमाटा ओपन है तो CO2 आया, अपने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया CO2 के साथ कंबाइन करके, देन मैलिक एसिड बना. वो मैलिक एसिड फर्दर यूज नहीं हुआ, रात के टाइम पे वो स्टोर हो गया वैक्यूल में. नाउ डे टाइम पे क्या हो रहा है, वो मैलिक एसिड वापस साइटोप्लाज्म में आ रहा है और डिसोशिएट हो रहा है CO2 और पायरुविक एसिड में. नाउ CO2 रन कर देगा C3 साइकिल with the help of Rubisco enzyme, और पायरुविक एसिड वापस पेप बना लेगा so that it can be again utilized during night time to catch CO2. Nishant, I have already sent this slide. Yes, malic और malic acid is same. Malate और malic acid is same. Yes, malic acid, it is being stored in vacuole.
रेस्पिरेशन स्नेहा चलता रहेगा, ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे। सम कोर्स ऑफ स्टोमाटा ओपन रहता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता रहेगा। रेस्पिरेशन प्लांट, जब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करेंगे, आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, लीफ एज इंटरनल फैक्टर, बच्चे लीफ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ये कॉमन सेंस वाली चीज है, इसमें कुछ इतना डिटेल नहीं है। अगर लीफ यंग है तो उसमें वो छोटा साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा तो स्टोमाटा का नंबर कम होगा, कम स्टोमाटा होंगे तो कम CO2 एंटर करेगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। बट अगर मैच्योर प्लांट है, मैच्योर लीव्स हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसमें स्टोमाटा वेल डेवलप्ड होंगे, मोर इन नंबर होंगे, तो ज्यादा CO2 एंटर करेगा एंड ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अच्छा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर वाला पेज नहीं है, आई विल सेंड दिस, आज ही ग्रुप पे सेंड करवा दूंगी, डोंट वरी, फैक्टर्स आई विल सेंड टुडे। Clear है? This was all about photosynthesis. Here your nutrition in plant is completed. Please revise it. Next we will start with nutrition in animals. और उसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे ह्यूमंस का, मोस्टली हम लोग वही पार्ट करने वाले हैं। ओके, सो दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे। बच्चा लीफ के एज पे भी डिपेंड करेगा ना, लीफ का एज जैसे जैसे लीफ मैच्योर होता रहेगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, जो पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट सॉरी सेल ऑर्गेनल होता है, वो डिस्ट्रॉय होता रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगा। यस, लीफ ओरिएंटेशन बच्चा क्या होता है, अगर लीफ डायरेक्टली एक्सपोज्ड है सन रेज पे, सन रेज उस पे डायरेक्टली एक्सपोज हो रही हैं, उसका ओरिएंटेशन ऐसा है, सो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। बट अगर लीफ शेड रीजन की तरफ ओरिएंटेड है सो कम फोटोसिंथेसिस होगा। तो दैट वाज अबाउट लीफ ओरिएंटेशन। बच्चा हाई टेम्परेचर, हिमांशी, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए ना प्लांट के पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग अडेप्टेशंस होती हैं दैट सो दैट दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स। तो यस, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ एंजाइम्स भी आती हैं, देयर इज डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू व्हिच प्लांट टैकल दीज ऑल दीज थिंग्स। तो वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अगर वो करना है तो आप कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ सकते हो जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंस पढ़ना, टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट्स। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म। Yeah, they can leave, they are free to leave. Please take care. Bye bye, I'll see you soon. Please revise and write down all the notes. जितना भी ये दिया है please note it down so that you can remember it. भूल मत जाना। Bye bye. Yes शर्वा, please पूछो क्या डाउट है।
शर्मा मैच्योर अगर स्टार्ट होना शुरू करेगा प्लांट तो वो अल्टीमेटली डेड होकर ही खत्म होगा ना। लीफ का भी मैच्योरिंग प्रोसेस जब एक बार वो मैच्योर होता रहेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू इट्स डेथ। तो प्लांट जैसे ही पूरा लीफ जिसमें पूरा डेड हो जाता है तो देयर इज अ लेयर बीइंग फॉर्म्ड नोन एज एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर बनता है बच्चा। वो एब्सिशन लेयर एक बार बन जाता है तो लीफ क्या होती है, जो डेड पार्ट, जो लीफ ऑलरेडी मैच्योर पूरी तरह से हो चुकी है एंड उसने अपना सारा काम कर दिया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, नाउ इट इज एजिंग। एजिंग होते होते उसके बाद एब्सिशन लेयर बनती है और धीरे धीरे वो इट फॉल ऑफ। Okay, so ultimately the maturing process will lead to the death of the leaf. Is a hormone that causes this abscission layer. वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम लोग पढ़ेंगे when we will be discussing about I think endocrine system वगैरह डिस्कस करेंगे और प्लांट में हार्मोन ट्रांसपोर्ट ये सब डिस्कस करेंगे, then we will be discussing all these. दुर्गा प्लीज डोंट आस्क मी मीजोफिल सेल। यार मीजोफिल सेल बहुत पहले पढ़ा था, वही अभी नहीं पता तो कैसे। मीजोफिल सेल अभी इतना सब डिस्कस किया, अगर वही नहीं पता तो कैसे। मीजोफिल सेल याद नहीं है? लीफ के अंदर स्ट्रक्चर में दो तरह के सेल रहते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देखो जब लीफ को कट किया तो उसमें एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर और बीच में ये मेसोफिल सेल थे। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिन्हीं सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है वहीं तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। याद आया दुर्गा? मेसोफिल सेल्स। यस शर्मा, विद टाइम पिगमेंट्स कैन आल्सो डिक्रीज, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट वगैरह नंबर डिक्रीज होता रहता है, उनके स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। These are all the signs of aging within the plants. Okay, then please revise everyone. Doubt नहीं है तो we can just leave. Revise everything. Try to note it down in your own words. सारी cycles and everything. Just revise it once, and we will meet next time. Till then, take care. Bye bye. Good night.